السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تزید ایمان کے لیے ہمیں حج جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے انشاءاللہ آج ہم جو ہے ہمیں رمضان کی تیاری کیسی کرنی چاہیے اور روزے کا مقصد آخر ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پاس آج ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے مختصر، اور ہم نے کیا مقصد بنا لیا روزے کا اور رمضان کا آج ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کی تعلیمات سے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے یعنی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نیکیاں جو بندہ جن کی نیکیاں ہیں اتنا جو ہے بندہ جو ہے لطف اٹھا سکتا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں جو ہے اللہ پاک جو ہے شیطان کو قید کر دیتا ہے، یعنی کہ اب ہم اس کی تیاری کرنا ہے، یعنی کہ رمضان پاک کی جو ہے رمضان مبارک کی جو ہے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امت کو پتا چلے کہ رمضان کی کیا برکت ہے، کیا اس کی عظمت ہے، یہ تمنا کرے گا کہ رمضان کا مہینہ چلتا ہی رہے، یعنی کہ روزہ رہتا ہی رہے، یعنی کہ زندگی بھر عمر بھر اتنی برکتیں اللہ پاک نے جو ہے اس مہینے میں رکھی۔ یعنی کہ رمضان ہے کیا، یعنی کہ رمضان کی تیاری ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم رمضان کی ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں، ہماری رمضان کی تیاری کیسی ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے لیے کئی آسانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی انتظام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی گناہ کے بخشش کے لیے کئی نیکیوں کے لیے کتنے کی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسانیاں عطا فرمائے، جیسے کہ 5 نماز اگر ہم پڑھیں گے تو 50 نماز پڑھنے کا ثواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں جو ہے اللہ پاک نے جو ہے تحفے میں جو ہے نماز دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بھی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے 50 نماز دی تھی تو اسے 5 نماز کم کرائے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ امت کے لیے لے کر اتر رہے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب میں نے تو اس نمازوں کو کم کر دیا ہے پر اس کی جو ہے ثواب میں کم نہیں کریں، یعنی کہ اگر بندہ 5 نمازیں پڑھے گا تو 50 نماز کا جو ہے یہ ثواب دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اللہ تعالیٰ رحمت برساتا ہے، اور رمضان کیا ہے، رحمت کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ رحمت ایسی رحمت اللہ تعالیٰ برساتا ہے کہ ہم اس کے انگنت، یعنی کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے انگنت چیزیں ہم پر جو ہے برساتا ہے، جیسے کہ ہم رمضان میں دیکھیے کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں جو ہے رمضان کے بغیر رمضان، یعنی کہ جو رمضان کے پہلے مہینے یا رمضان کے بعد کے مہینے میں کچھ نہیں کھا سکتا پر رمضان کے مہینے میں وہ کھا لیتا ہے۔ ہم جیسے لوگ بھی ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو چیز ہم نہیں کھاتے وہ چیز بھی ہم جو ہے رمضان کے مہینے میں بھر بھر کے کھا لیتے ہیں، یعنی کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا رحمت کا مہینہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ امت کا مہینہ بتائے، تو یہ امت کا مہینہ ہے، ہم اسے کیسا گزار رہے ہیں، دیکھیے ہم اس کی تیاری ہم کیسا کر رہے ہیں۔ اب ہم کچھ خریدتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، خریدنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اس کی تیاری یعنی کہ لسٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لسٹ بنا کر کیا کرتے ہیں، ہم بھی رمضان کی تیاری ہم کیسا کرتے ہیں، رمضان کی تیاری یعنی کہ اب وہ جو لسٹ بناتے ہیں ہم اسے اسٹور کہاں کرنا ہے وہ سب سوچ کر جو ہے ہم رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم رمضان کی تیاری کرنا ہے، ہمیں رمضان کی تیاری کرنا ہے، ہمیں جو ہے وقت عبادت میں لگانا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں رمضان میں وقت عبادت کے باہر لگاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم رمضان کا مقصد کیا بنا لیتے ہیں کہ فلاں ہم دیکھیے ہم بھوکے رہتے ہیں، ہم نے یہ چاہیے، ہمیں یہ پکا کے کھانا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہم کھانے کا مقصد بنا لیے، ہم روزے کا مقصد رمضان کا مقصد کھانا یہ بنا لیے، ہمیں دیکھیے کھانا ہے، ہمیں ہر چیز کرنا ہے۔ اب مومن بندہ کیا کرتا ہے، پہلی بات تو رمضان آنے سے پہلے جو ہے وہ تیاری کرتا ہے، وہ کیا تیاری کرتا ہے، جیسے کہ عام بندہ کیا کرتا ہے رمضان آنے سے پہلے گھر کے جالے صاف کرتا ہے، گھر کی دھول گرد صاف کرتا ہے، اسی طرح سے مومن بندہ یعنی کہ ایمان والا بندہ کیا کرتا ہے، اپنے قلب کو پاک کرتا ہے، اور اللہ پاک نے بھی جو ہے ہمیں جو ہے قلب کو پاک کرنے کا ایک دن بھی مقرر کیا تھا، شب برات کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن ہمیں معافیا مانگ ہماری
ہماری معافیوں کو قبول کر لیتا ہے، یعنی کہ ہمیں بخش دیتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم رمضان کی قدر کر رہے ہیں، ہمیں رمضان کی جیسی قدر کرنے کا حق ہے، کیا ہم رمضان کا قدر کر رہے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا اور آپ نے کہا آمین، اور دوسری سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا، آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا اور آپ نے کہا آمین۔ اور صحابہ نے کیا کیا، خطبہ ہوئے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنت دیکھی اور دعا کوئی نہیں کر رہا تھا، آپ آمین کہہ رہے تھے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر جو ہے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے بددعا کی۔ اور کیا بددعا کی، آپ بتاتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے جو ہے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور اس کی قدر نہیں کی، یعنی کہ اس کی جو ہے خدمت نہیں کی، تو اور اس کی اور اپنی مغفرت نہیں کرائی، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے پہلی سیڑھی پہ جب آپ قدم مبارک ہے تو جبرائیل علیہ السلام آ کر فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے شخص جو اپنے ماں باپ کو جو ہے بڑھاپے میں پایا اور خدمت نہیں کی، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے دعا کون کر رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، اور آمین کون کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کی جو ہے ہمیں خدمت کرنا چاہیے۔ اور تیسری سیڑھی پہ جو ہے آپ نے جب قدم مبارک رکھا تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پایا اور رمضان کی قدر نہیں کی، یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ رمضان کی قدر کرنا چاہیے اور ہمیں مغفرت، یعنی کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بخش دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کی تیاری کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کیا فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے آئے اور دوسری سیڑھی پہ آپ جب نے قدم مبارک رکھا تو نبی کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کر لی، یعنی کہ یہاں پہ آمین کہنے والے کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنا چاہیے۔ اور جب آپ تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا اور بددعا کیا دی جا رہی ہے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کا نام یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود پاک نہیں پڑھا، یعنی کہ وہ برباد ہو جائے شخص، یعنی کہ یہاں پہ بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ آمین۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو ہمیں ساتھ میں جو ہے درود شریف پڑھے، یعنی کہ محمد سنے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ تو یہ کیا ہے، یہاں پہ جو ہے یہ ہمیں اس سے کیا پتا چلا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنا چاہیے، اور رمضان کی تیاری کیسی تیاری چلنا چاہیے، جیسا اللہ کے رسول چاہتے ہیں ویسی تیاری کرنا چاہیے۔ مگر ہم نے کیا کیا، ہم جو سمجھتے ہیں کہ رمضان آیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں ہم یہ چیز بنا کے کھائیں گے، فلاں ہم ہمارے کچن میں ہم اتنا ٹائم ویسٹ کریں گے، فلاں ہم یہ چیز کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کے لیے تو ہم بہت سارے کام نکالتے ہیں۔ دیکھیے شیطان کو اللہ پاک جو ہے اللہ پاک رمضان میں قید کر دیتا ہے، پر ہمارے ساتھ جو ہے ایک دیکھیے ہمارا دشمن کون ہے، تین چیزیں، ایک تو ہے شیطان، ایک ہے نفس اور ایک دنیا، یہ تین چیزیں ہمارے دشمن ہیں۔ ایک کو تو شیطان کو تو اللہ پاک نے تو بند کر دیا ہے، اب وہ شیطان کو بھی جو شیطان بنانے والا ہے وہ نفس ہے، تو ہمارے ساتھ نفس ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نفس پہ نظر رکھنا چاہیے۔ اب نفس ہمیں ابالتا ہے، ہمیں جو نفس کیا کرتا ہے، ہمیں جو ہے کیا بولتے ہیں، ہمیں جو ہے گناہ میں ڈھکلتا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، رمضان ہے کیا، رمضان کا مقصد ہے کیا، روزے کا مقصد کیا ہے کیا، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم نفس کی خواہشات میں لگ جاتے ہیں، ہم یہ پکا کے کھانا، وہ پکا کے کھانا۔ جب دین کی بات آئی تو ہم بولتے کہ رمضان ہے نا کیسا ہوتا، رمضان ہے نا کیسا ہم حلقہ اٹینڈ کر سکتے، رمضان ہے نا ہم کیسا بیان کر سکتے، رمضان ہے نا ہم کیسا کر سکتے۔ دنیا کے لیے تو ہم ہر کام نکالتے ہیں، ہر ٹائم نکالتے ہیں، مگر جب ہم دین کی بات آتی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں ہم جو ہے دین کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھے۔ دیکھیے دنیا میں ہم جو کچھ بھی کماتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ سب یہاں پہ چھوڑ کے جانے ہوئے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر رشتہ فنا ہونے والا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ جو رشتہ جو ہمیں جو ساتھ دینے والا ہے وہ رشتہ جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ڈالنا چاہیے، یہ ڈالیں گے تو ہمیں ہر چیز کی اہمیت پتہ چلے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین سیکھنا ہے۔ دین کیا ہے، ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی دیکھا کہ اللہ کی مرضی ہے، دین کیا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی کیا ہے، اسلام، ایمان، احسان۔ تو ہمیں اس پہ ٹکنا ہے۔ دیکھیے یہ چیزیں ہم کریں گے، دین کی چیزیں کریں گے تو ہم دنیا میں آسانیاں ہوگی۔ ہم سمجھ رہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں بزی رہ جائیں گے، یہ چیزیں ہمیں جو ہے ہمارے کام میں ایک ٹائم وہ ہو جا رہا،
मगर नहीं, अगर हम ये चीज़ें सीखेंगे तो हमें अल्लाह पाक खुद हमारे साथ हो जाएगा और अल्लाह पाक खुद हमें आसानियाँ पहुँचाएगा। हमें चाहिए कि हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। तो रमज़ान का मकसद और रोज़े का मकसद है क्या? अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरे बकरा आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाए, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले ये लोगों पे फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बनो, ताकि तुम मुत्तकी बनो। अब देखिए, हम पर रोजे फर्ज क्यों किया गया? ताकि हम मुत्तकी बने। मुत्तकी कौन है? जो तकवा इख्तियार करता है। तकवा कैसा हासिल होता है? रोजे में कैसा मुत्तकी बनेंगे हम? जैसा रोजा रहने का हक है वैसा रोजा रखेंगे तो इंशाल्लाह हम मुत्तकी बन जाएंगे। अब रोज़े किस लिए रख रहे थे? इफ्तार, सहरी के लिए रोज़े नहीं है। रोज़े का मकसद क्या है? तक़वा हासिल करना है। और ईद उसकी होती है, बच्चों की ईद कैसी होती है? अच्छे लिबास पहनना, अच्छे ईदी मिलना, सब जगह जाना। अब बालिग़ीन की ईद क्या होती है? तक़वा इख्तियार करना है। यानी कि बंदा जो है, रमज़ान का रोज़े का मकसद क्या है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मुत्तकी बनो। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो तक़वा हासिल कर लेता है वो मुत्तकी बन जाता है। और तक़वे के माने भी, और ये अल्लाह फरमाते हैं कि डरना और परहेज करना। यानी कि बंदा कब डरेगा, बंदा कब परहेज करेगा? जब बंदा जो है अल्लाह ताला की रजा के खातिर, अल्लाह के मर्जी के खातिर जिंदगी गुजारेगा। यानी कि हमने अल्लाह की मर्जी क्या है देखा? इस्लाम, ईमान, एहसान। यानी कि इस्लाम, यानी कि हमने क्या देखा? इस्लाम के माने क्या है? मानना। क्या मानना, कैसा मानना? अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो मान लेना। यानी कि चूचरा नहीं करना, इफ बट डोंट, ये कुछ नहीं करना। हम जो अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो मान लेना। अगर हम ये मान लिए तो क्या बनते बनते हम उस इस्लाम में हम दिख जाते। उसी तरह से बंदा ईमान वाला, ईमान के माने क्या है? जानना। क्या जानना? जो हमने इस्लाम में माना वो जानना। क्या जानना? अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह ताला हाजत रवा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है, ये हमें जानना है। ये जानने के लिए हमें दिल में यकीन पैदा करना है। यानी कि इस्लाम, ईमान, जितना जानतापन हासिल होगा, बंदा जितना यकीन पैदा करेगा, जब यानी कि जितना यकीन पैदा करेगा तो बंदा जो है एहसान, यानी कि एहसान के माने क्या है? देखना या दिखना। यानी कि क्या देखेगा? अल्लाह ताला की उलूहियत को, पन को देखेगा। देखिए, एक तो क्या चीज है? हमें इस्लाम में मान लेना है, चूचरा नहीं करना है। जो अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो मान लेना है। और जानना क्या है? ईमान में क्या जाना है? कि अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना है। यानी कि यकीन पैदा करना है। हम जिसको मानते हैं, जिसको जानते हैं, जितना जानतापन हासिल होगा बंदे के दिल में, उतना यकीन पैदा होगा। अब बंदा जिसके दिल में यकीन पैदा करेगा, उसके बारे में देखने लगेगा। तो हमें क्या जानना है? हमने इस्लाम में कितने देखा चीज, अरकान कितने हैं? 5, कलीमा, नमाज, रोजा, ज़कात। यानी कि पहला क्या है? ईमानी कलीमा है। तो पहले हमें ईमानी कलीमे की दिल में तस्दीक करना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में हमारे तस्दीक करना है। जब हम ये तस्दीक करेंगे तो हम जितना हम जानतापन हासिल करेंगे तो बंदे के दिल में यकीन पैदा होगा। जब बंदे के दिल में यकीन पैदा होगा तो बंदा देखने लगेगा। क्या देखने लगेगा? अल्लाह ताला की उलूहियत पन को देखने लगेगा। अल्लाह ताला की हाजत रवाई पन को देखने लगेगा। तो बंदा जो है एहसान पे टिकेगा। अब बंदा जब एहसान पे टिकेगा, जब देखने लगेगा, तो बंदा जो है डरने वाला तो बनेगा ना। अल्लाह ताला को जब अल्लाह ताला की उलूहियतपन को देखता है, अल्लाह ताला के से डरने भी लगेगा। यानी कि अल्लाह ताला की नाराज़गालीपन काम से डरेगा और परहेज़ करेगा। अल्लाह ताला की मना की हुई चीज़ों से परहेज़ करेगा। ये डरना, परहेज़ करना, यानी कि मुत्तकी, तक़वा वाला कब बनेगा? जब बंदा इस्लाम, ईमान, एहसान पे टिकेगा तो ही मुत्तकी बनेगा। और रोज़े का मकसद अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं? कि मुत्तकी बनो, ताकि तुम मुत्तकी बनो। यानी कि मुत्तकी बनने के लिए हमें इस्लाम, ईमान, एहसान पे टिकना ज़रूरी है। जब बंदा इस पे टिकेगा, तो ये बंदा जो है मुत्तकी बनेगा। और अल्लाह ताला के हबीब यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हदीस शरीफ में आता है कि रोज़ा अमानत है। तुम्हें चाहिए कि अमानत की हिफाज़त करें। यानी कि रोज़ा अमानत कह रहे हैं। और अमानत अल्लाह ताला जो है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रोज़ा अमानत है। अब देखिए, रोज़ा अमानत है। अब देखिए, अमानत किसे कहते हैं? अमानत जो चीज़ हम किसी को देते हैं तो हम इसकी हिफाज़त कैसी करते हैं? कि जैसे कि हम
कोई जने जो है हज पे जा रहे हैं, तो क्या करते हैं अपने बच्चों को जो है किसी के पास छोड़ते हैं, ठीक है? तो वो जो है उन्हें जिसके पास छोड़ते हैं, उन्हें उसको अमानत के तौर पे ऐसा देखते हैं जैसा माँ-बाप उनके देखते हैं। यानी कि उनसे ज़्यादा ही देखते हैं। यानी कि वो चीज़ अमानत है, यानी कि उसे लौटाना है। उसी तरह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, रोज़ा अमानत है। तुम्हें चाहिए कि अमानत की हिफाज़त करें, तो हमें चाहिए कि हमें अमानत की हिफाज़त करना है। क्योंकि अब देखिए जन्नत में जो है 8 दरवाज़े होंगे, एक दरवाज़ा ऐसा होगा उसमें से सिर्फ़ रोज़दार ही जो है एंटर होंगे। तो हमें चाहिए कि हमें अब देखिए रोज़ा अमानत कैसा हो गया, ये अमानत अल्लाह ताला की अमानत है। तो हमें से रोज़े का मकसद क्या है, वो मकसद तक हमें पहुँचना है यानी कि मुत्तक़ी बनना है। और ये रोज़ा हम हमारे लिए नहीं कर रहे, हर अमल हमें अल्लाह ताला इसका हिसाब देगा। जब हम ये रोज़े की बारी आएँगे तो अल्लाह ताला ये रोज़े का जो अमल हैगा खुद ले लेगा। क्यों लेगा? ये अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये रोज़ा मेरे लिए रखा है। यानी कि ये रोज़ा अल्लाह ताला के रखना है, यानी कि अल्लाह ताला के लिए करना है। अब ये कब करेगा बंदा? जब मुत्तकी कब बनेगा बंदा? जब बंदा जो है इस्लाम, ईमान, एहसान पे टिकेगा, तो बंदा जो है मुत्तकी बनेगा। और रोज़ा क्या है? अमानत है और अल्लाह ताला ने हमें अमानत दी और अल्लाह ताला ने हमें अमानत दी और ईमान का और एतबार का वज़न जो है अमानत के एहसास पर जो है डिपेंड होता है। तो अब बंदे के पास जितना ये अमानत का एहसास अब बंदे के पास अमानत का एहसास कब आएगा? जब बंदा ईमान वाला बनेगा, जब बंदे के दिल में कलीमे की तस्दीक होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक जब बंदे के दिल में होगी, तो बंदा जो है अमानत का एहसास करने वाला बनेगा। क्यों क्या एहसास करेगा? ये जो चीज़ दी गई वो अल्लाह ताला की तरफ से रही, यानी कि अल्लाह के मनचा के तहत करेगा। अब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुछ लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन सिवाय भूख और प्यास के उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो अल्लाह के मर्ज़ी के तहत जो है रोज़ा नहीं रखे। अब अल्लाह की मर्ज़ी है क्या? अल्लाह ताला कुरान मजीद में बता दिया कि तुम्हें रोज़े हमने इसलिए फ़र्ज़ किए गए कि ताकि तुम मुत्तकी बनो और हदीस शरीफ में भी बताया गया है कि रोज़ा अमानत है। तो हमें जो है ये अमानत का एहसास के लिए ईमान होना ज़रूरी है और ईमान जब बंदे के दिल में आएगा तो बंदा जो है यकीन वाला बनेगा। जितना जानतापन हासिल होगा तो बंदा जो है रोज़े के मकसद तक पूरा कर लेगा, यानी कि मुत्तकी बनेगा, यानी कि डरना परहेज़ करना डरना और परहेज़ करने वाला बनेगा। और हदीस शरीफ में ये भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखा अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देता है। यानी कि ईमान और एहतिसाब के साथ जो है बंदा जो है रोज़ा रखना है तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देता। अब ईमान क्या है? हमें यकीन पैदा करना है। देखिए यकीन कितने किस्म के होते हैं? ये यकीन जो है 3 किस्म के होते हैं। अल्लाह वाले बताते हैं ये तफसीर नई में भी कि यकीन जो है 4 किस्म के होते हैं। एक यकीन जो होता है डुल्मुल यकीन होता है, एक यकीन जो होता है इल्मुल यकीन होता है, एक यकीन जो होता है ऐनुल यकीन होता है, एक यकीन जो होता है हक़्क़ुल यकीन होता है। अब डुल्मुल यकीन यानी कि वो किधर का भी नहीं होता है और इल्मुल यकीन यानी कि उसके पास उसका इल्म यानी कि जिसके बारे में यकीन पैदा करने गया उसके बारे में इल्म हासिल करता है। तो बंदा जब इल्म हासिल करने वाला बन जाता है तो बंदा ऐनुल यकीन पे पहुंच जाता है। ऐनुल यकीन यानी कि देखने लगता है और जब देखने लगता है तो बंदा जो है हक़्क़ुल यकीन पे पहुंच जाता है। अब रोज़ा क्या है? रोज़ा जो है हमें इस्लाम के तहत भी रहना है, रोज़ा जो है ईमान के तहत भी रहना है, रोज़ा जो है हमें एहसान के तहत भी रहना है, रोज़ा जो है जब हम ये 3 चीज़ों पे टिक कर जब हम रोज़ा रहेंगे तो हम जो है तक़वा यानी कि मुत्तकी के जैसे हम बनेंगे, यानी कि वहाँ तक पहुँच जाए। तो हम जब इल्म हासिल करेंगे, हम इल्म हासिल करना जब शुरू करेंगे, जब जितना यकीन पैदा होगा तो हम ऐनुल यकीन यानी कि हम देखने लगेंगे, यानी कि अल्लाह की उलूहियतपन को देखने लगेंगे। जब हम अल्लाह ताला की उलूहियतपन को देखने लगेंगे तो हम हक़्क़ुल यकीन यानी कि तक़वे तक पहुँच जाएंगे। यानी कि रोज़े का मकसद क्या है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाया? तुम मुत्तकी बनो। तो हम जब मुत्तकी बनने के लिए हमें हक़्क़ुल तक हम पहुँच गए। तो अब दुल्मुल यकीन यानी कि सिर्फ ज़बान पे रहता और हुज़ूर ग़ौसुल सक़लैन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि ज़बान से जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वो निफाक है अगर दिल में नहीं उतरा तो, यानी कि हमें दिल में उतारना है, कलीमे की तस्दीक हमारे दिल में उतारना है। वो करने के लिए हमें अल्लाह वालों से जुड़ना ज़रूरी है। अब देखिए डुल्मुल यकीन यानी कि सिर्फ ज़बान पे रहता है, इल्मुल यकीन यानी कि इल्म के तहत दिल में उतरी गई वो चीज़ वो ऐनुल यकीन तक देख ले, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हमें इसका इल्म हासिल करना। जब जितना इल्म हासिल करेंगे तो हम दिल में उतरेगा, जब दिल में जो चीज़ उतरेगी तो हम उसके बारे में देखने लगते हैं, यानी कि अल्लाह ताला
की उलूहियत पन को देखने लगते, अल्लाह ताला की हाजत रवाई पन को देखने लगते। जब देखने लगते तो हम जो है हक तक पहुंच जाते, यानी कि उसके डर उसके उससे हम डरने वाले बन जाते, यानी कि उससे परे उसकी जो चीज मना की चीजों से हम परहेज करने लगते। अब देखिए, हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसकी मना की हुई चीजों से हम परहेज करने लगते हैं, यानी कि उसके हम डरते, उसकी उसको अगर हम नाराज करें तो कैसा। तो उसी तरह से हम जो इल्म हासिल करते हैं, यानी कि अल्लाह ताला की उलूहियतपन का अगर हम इल्म हासिल करेंगे तो हम देखने लगेंगे, हम उसके डरने यानी कि उसके मना की हुई चीजों से परहेज करेंगे, डरेंगे। तो रोजे का मकसद क्या है, हमें मुत्तकी बनना है। और यकीन किसका आना है, तीन चीजों का बंदे के दिल में अगर यकीन पैदा हो जाएगा तो बंदा जो है ये रोजे के मकसद को भी पा लेगा, और जितने भी अल्लाह पाक ने जितने भी इन चीजों पे हमें ईमान लाने के लिए बताए हैं, वो हम ये सब ये तीन चीजों में हमारे वो चीजें पूरे आ जाएंगे। अब पहला यकीन क्या होना चाहिए कि अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ताला ही इलाह है, अल्लाह ताला ही माबूद है, अल्लाह ताला ही हमें पालने वाला है, अल्लाह ताला हमारे साथ है, ये हमारे दिल में यकीन होना। और जब दूसरी चीज क्या है, हमें जो है जो अल्लाह ताला जो है हमें, ये दूसरी चीज ये है कि जो अल्लाह की मर्जी है उसमें हमें जो है हमारी भलाई है बोलकर हमें जो है ये यकीन पैदा करना है। जब बंदा इसमें भी जब बंदा ये दिल में जब तस्दीक कर लेगा, दूसरी चीज ये है, और तीसरी चीज जब बंदा ये यकीन जब बंदे के दिल में तस्दीक कर लेगा अल्लाह ताला की मर्जी के है, मर्जी के तहत मर्जी ही मेरे उसमें जो है भलाई है। अब हम क्या करते हैं, दुनिया में जो है हमारी भलाई ढूंढने पहुंचते हैं, और अल्लाह अल्लाह के रसूल के पास जो भलाई क्या है, दीन है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की मर्जी है, उसमें हमारी भलाई है, ये हमारे दिल में यकीन पैदा करना है। बंदा जब ये कब यकीन पैदा करेगा, जब बंदा इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में तस्दीक करेगा, तो बंदा जो है यकीन पैदा करेगा कि फर्स्ट यकीन क्या लाना है कि हमें अल्लाह ताला हाजिर है, अल्लाह ताला हमारे साथ है, ये हमारे दिल में तस्दीक करना है। जब हम जितना इल्म हासिल करेंगे तो हम ऐनुल यकीन यानी कि देखने वाले बनेंगे, और हक़ुल यकीन यानी कि हम परहेज करने वाले, डरने वाले यानी कि मुत्तकी बनेंगे। तो रोजे का मकसद भी हम हासिल करेंगे। ये दूसरी चीज है कि हम अल्लाह ताला की मर्जी में ही हमारी भलाई है, ये हमें जो है यकीन पैदा करना है। और तीसरी चीज ये है कि हमें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, अल्लाह ताला के खासिम है, अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला देने वाला ज़ात है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहुंचाने वाली यानी तकसीम करने वाले से है। यानी कि अल्लाह ताला हाज़िर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाने वाले हैं। तो अब हम देखें हम क्या करते, मेरे को अल्लाह दे रहा ना, मुझे नौकरी देना ना, ये हम सोचते, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से दे रहा, ये हमारे दिल में यकीन पैदा करना है। ये कब पैदा होगा, जब हम जो है एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करेंगे। यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें जानना है। जब हम ये जानेंगे, जितना बंदे के दिल में जानतापन हासिल होगा, तो बंदे के दिल में जो है यकीन पैदा होगा। जब बंदे के दिल में यकीन पैदा होगा तो बंदा जो है हक़ुल यकीन यानी कि मुत्तकी बनेगा, यानी कि डरने वाला, परहेजगार बनेगा। तो हमें चाहिए कि रोजे का मकसद क्या है, इस्लाम, ईमान, एहसान, इस पे टिकेंगे, ये तो हम जो है रोजे के मकसद यानी कि मुत्तकी पर पहुंचेंगे। तो हमें ये यकीन पैदा करना है, यानी कि इल्मुल से ऐनुल यकीन तक जाना है, फिर ऐनुल यकीन से हक़ुल यकीन, यानी कि हमें जब ये करेंगे तो हमारे दिल में जो है डरने और परहेज करने वाले, हम अल्लाह ताला से डरने और परहेज करने वाले बनेंगे। तो ये जो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजों का यकीन हमारे दिल में लाना है। अब ये तीन चीजों के साथ हम यकीन के साथ अगर रोजा रहेंगे तो हमारे रोजा रहने के मकसद को हम पूरा कर लेंगे, और अल्लाह ताला ने जितने भी चीजों पर ईमान लाने के लिए कहा है वो सब चीजें इसमें ऐड हो जाएंगे। और खबर के सवालत भी जो है ये तीन चीजों पे ही है, यानी कि ये ईमानी सवालत पे ही है। क्या सवालत होंगे खबर में जाते कि तेरा रब कौन है, यानी कि अब हम रोजे में यकीन पैदा कर रहे हैं, रोजे में हम जो है यकीन यहाँ पे पैदा करें तो हम जाकर भी हम जो है जवाब दे सकेंगे। और दूसरा जवाब क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या रहेंगे, तेरा दीन क्या है, यानी कि हमने क्या हमारे दीन हमने बना लिया। जैसे कि हम दूसरा यकीन हमें क्या करना है कि अल्लाह ताला की मर्जी के तहत हमारी भलाई, हम ये समझना है। मगर हम अगर हमारे तरफ से हम दीन बना लिए, ये फला ये चीज ये दीन है, ये नहीं, अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन बताया वो दीन में हमारी भलाई हम देखना है। तो ये यकीन हमें पैदा करना है, तो हम जो है ये रोजे के मकसद को भी हम पूरा कर सकेंगे, और ये प्रैक्टिस है, और हम जाके खबर में भी जो है ये जवाब दे सकेंगे, दूसरा सवाल का भी हम जो है जवाब दे सकेंगे। और तीसरा सवाल वहां पे क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है हमें जो सारी चीजें पहुंच रही है, यानी कि इल्म हासिल करना है, हमें बोलने से नहीं हो रहा, मतलब इल्मुल यकीन की तरफ आना, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाने वाले कैसा देख रहे, फिर हम देखना है, जब हम देखेंगे कि हम जब हक़ुल यकीन
के पास पहुँचेंगे। तो हक़ुल यकीन के पास आने के लिए, मुत्तक़ी बनने के लिए हल में इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना ज़रूरी है। जो अल्लाह की मर्ज़ी है, उसमें हमारी भलाई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाने वाले हैं, तक़सीम करने वाले हैं, जो अल्लाह इलाह होकर अता करता है, वो तक़सीम करते हैं, पहुँचा रहे हैं। तो हमें जो है ये दिल में तस्दीक करना है। ये कब होगा? इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक करना ज़रूरी है। तो हम रोज़े के मकसद को भी हम पूरा कर सकेंगे और ईमान और एहतिसाब के साथ जो है हम रोज़ा रख सकेंगे। तो अब तो हमें चाहिए कि हमारे रोज़े के मकसद को पूरा करने के लिए इल्म ला इलाहा सीखना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमें ईमान सीखना ज़रूरी है। ईमान जब बंदे के दिल में आएगा, देखिए मुसलमान तो बंदा जो है सामने बुतों को रख के जो है पूजा नहीं करता है, मगर दिल में जो है पूजा करता है रख के। यानी कि जब बंदा समझता है कि फलाँ ये चीज़ से हमारी ज़िंदगी हो रही है, फलाँ मेरा शौहर कमाने से मेरी ज़िंदगी चल रही है। हम ये भी समझते हैं कि फलाँ मैं घर में रहने से, मैं पकाने से मेरे घरवाले खा रहे हैं। मगर हम अपने-अपने ज़हनों से हमने बुत बिठा लिया। देखिए, ये बुत बिठा रहे हैं हम, ये बुत क्यों बिठा रहे हैं? क्योंकि हमने दिल में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मोहब्बत हमारे दिल में नहीं डाले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं करे। तो हमें चाहिए कि इल्म ला इलाहा अगर हम सीखेंगे तो दिल से जो है ये सब चीज़ें जो हम हमारे ज़हनों से हमने जो बुत बिठा लिए वो हम हटा सकेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम बसा सकेंगे। जब ये बसाएँगे तो हम ऐनुल यकीन यानी कि अल्लाह ताला के उलूहियतपन को देखने वाले बनेंगे। जब देखने वाले बनेंगे तो हम अल्लाह ताला की मना की हुई चीज़ों से यानी कि डरेंगे और परहेज़ करने वाले बनेंगे। और एक वाक़या रखती हूँ कि एक मर्तबा जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है बाज़ार से गुज़र रहे थे, तो आपने देखा कि एक सहाबी जो है हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है आप बैठे हुए थे, आप बहुत रो रहे थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि ए हंज़ला हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, "ए हंज़ला तुम क्यों रो रहे हो?" तो इस पर आप जो है फरमाते हैं कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं मुनाफ़िक हो गया। देखो ईमान का एहतिसाब आप लोग कैसा करते हैं वो इस वाक़या में हमें पता चलता है कि ये पता चलता है कि आपका कैसा ईमान का आप एहतिसाब कर रहे हैं। अब देखिए आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा कि ये न हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला ने आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जब रहता हूँ, यानी कि आप फरमा रहे हैं कि मैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहता हूँ तो मुझे मेरे ईमान में इज़ाफ़ा दिखता हूँ। मगर जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में नहीं रहता हूँ, जब मैं बाज़ार में रहता हूँ, जब मैं घर में रहता हूँ, जब मैं कहीं और रहता हूँ, तो मेरी ईमान में इज़ाफ़ा नहीं होता है। वहाँ पे जो है कैफ़ियत कुछ और होती है। यानी कि जो ईमान वाले होते हैं, जिसके दिल में ईमान की तस्दीक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होती है, तो बंदा ईमान वाला क्या करता है, अपना मुहसिबा यानी कि एहतिसाब करता है कि मेरे ईमान में कमी तो नहीं आई, मैं अल्लाह ताला की मना की हुई चीज़ों से वो तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं अल्लाह ताला की नाराज़गी वाली काम तो नहीं कर रहा हूँ। यानी कि आप फरमा रहे हैं कि मैं इसलिए रो रहा हूँ, जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता हूँ, तो मेरे जो है ईमान में इज़ाफ़ा दिखता है, यानी कि मेरे क कुछ कमी नहीं दिखती है। जब मैं बाहर आता हूँ, तो मेरे ईमान में इज़ाफ़ा नहीं रहता है, यानी कि मेरे कुछ कमी दिखती है, तो इसलिए रो रहा हूँ कि क्या मैं मुनाफ़िक हो गया? तो इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सुनकर जो है आप भी बड़े रोने लगते हैं। इतना रोते हैं कि हाँ, मेरा भी यही प्रॉब्लम है। मेरा भी जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहता हूँ, तो मेरे ईमान में जो है इज़ाफ़ा होता है। जब मैं अलग हो जाता हूँ, तो जब घर की तरफ तशरीफ़ ले जाता हूँ या मैं बाज़ार में रहता हूँ, जब मैं काम की जगह रहता हूँ, तो मेरे ईमान में जो है कमी होती है। तो फिर आप दोनों क्या करते हैं, आप दोनों जो है अपना जो प्रॉब्लम है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जो है तशरीफ़ ले जाते। यानी कि देखिए, जब कुछ बात नहीं समझ आए तो कहाँ पे जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जा रहे हैं। आप दोनों जो है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो मुनाफ़िक हो गए हैं। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ये क्यों कह रहे हो? फिर आप दोनों फरमाते हैं कि जब सोहबत में आपके रहते हैं तो ईमान ताज़ा रहता है। जब ईमान की कैफ़ियत अलग होती है और जब आपसे जब हम जुदा होते हैं, यानी कि जब हम बाहर रहते हैं या हम बाज़ार की तरफ रहते हैं या हम घर की तरफ रहते हैं, तो वो कैफ़ियत जो आपके साथ रहती है, वो कैफ़ियत हमारे पास नहीं होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ये निफ़ाक़ नहीं है, क्योंकि जब तुम मेरे करीब होते हैं, तो हक़ मेरे करीब है।
इसलिए ईमान में इज़ाफ़ा हो जाता है। हक कौन है? अल्लाह ताला। क्योंकि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो अल्लाह ताला को देखा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हैं, तो उनके पास जो है ईमान में इज़ाफ़ा होता है। तो आप फरमाते हैं कि अगर 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 आपके पास यही कैफ़ियत अगर बाहर भी होती, तो आपकी जो है फ़रिश्ते जो है आकर आपके हाथ को जो है बोसा देते। यानी कि वो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आपकी कैसी ईमान की बड़े सहाबिया हैं आप दोनों, आपकी कैसी कैफियत थी देखिए। हालाँकि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कैसा कैसा आप दोनों की मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के बारे में भी हमने सुना। फिर भी आप लोगों की कैफियत कैसी थी देखिए, आप लोग अपने ईमान का मुहसिबा यानी कि इत्तेसाब कैसा करते। हम कैसे हैं, हम हमारे एक तो बात तो हम हमारे दिल में हम ज़बान से तो कहकर फरमाते हैं कि हम ईमान वाले हैं और हम जो है अमल के पीछे लगे, मगर पहले जो है हमें कलीमे की तस्दीक हमारे दिल में करना है। कलीमे की तस्दीक करते हुए हमें जो है रोज़ा, हमें ज़कात, ये सब चीज़ें करना है। जो अल्लाह ताला के पास अमल जो कबूल होंगे, बिना ईमान के कबूल नहीं होंगे। तो वो लोग जो है कैसा आप लोगों की कैसी ईमान की कैसा इज़ाफ़ा मतलब कि कैसा मुहसिबा यानी कि एहतिसाब कर रहे हैं, कैसा अपना कौंट-डाउन कर रहे हैं, मतलब कि क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे तो हमारे ईमान में कैसा कमी कैसा रहता, और हम अलग अलग रहे तो हमारी ईमान में कैसी कमी। देखिए कैसा का करें, हम क्या करते हैं, हम तो छोड़ो, हमारे दिल में भी हम नज़र नहीं मारते। हम तो खाली ज़बान पे बोलते हैं कि हम अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हम ज़बान से तो बोल देते हैं, मगर दिल में कुछ और रहता है। ये हमें निकालना है, निकाल के हमारे ईमान की तस्दीक करना है। इतने बड़े सहाबिया रहने के बावजूद भी अपना मुहसिबा कैसा करें, अपना एहतिसाब कैसा करें। और रोज़े का मकसद भी ये है कि ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखना है। यानी कि रोज़े का मकसद क्या है, पहले तो हमें मुत्तकी बनना और एहतिसाब यानी कि हम देखना कि हम सुबह से शाम तक देखना क्या हम अल्लाह ताला की नाराज़गी वाले काम कर रहे हैं, क्या अल्लाह ताला की मना की हुई चीज़ों से परहेज़ कर रहे हैं, ये सब देखना। ये कौन करेगा? जिसके दिल में कलीमे की तस्दीक होती है, जिसके दिल में इल्म ला इलाहा की तस्दीक होती है, तो बंदा जो है एक बंदा जो है ईमान ईमान के साथ रोज़ा रहेगा, और जो मकसद है रोज़े का मकसद, वो रोज़े के मकसद को पा लेगा, और बंदा जो है एहतिसाब करने वाला बनेगा, यानी कि मुहसिबा करेगा कि मैं क्या करा ज़िंदगी, मतलब कि दिन में क्या करा, रात में क्या करा, ये सब चीज़ें जो है मुहसिबा करने वाला बनेगा। ये मुहसिबा करने वाला तो ये हमें पहले ईमान से ईमान दिल में लाना है, यानी कि ईमान लाने का ज़रिया क्या है? कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना। और एक वाक़या रखती हूँ, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है घर से आप जो है एक घर से जो है जब आपके एक खिलाफत के दौर के टाइम पे जो है आप जो है एक घर के सामने से जो है गुज़र रहे थे। तो आपने देखा कि घर से जो है आवाज़ आ रही है, एक माँ और एक बेटी जो है बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वो जो है दूध निकालने वाले थे। तो दोनों ये बात कर रहे थे कि माँ जो है बेटी से कह रही थी कि बता रही थी कि दूध में जो है पानी मिला दे। तो बेटी ने कहा कि ये तो खलीफे का हुक्म है, यानी खलीफा यानी कि कौन थे? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की गश्त के टाइम पे जो है ये वाक़या हो रहा था, और आपके खिलाफत के टाइम पे जो है ये वाक़या हुआ है। तो आप फरमाती है, यानी कि बेटी जो है माँ से कहती है कि मैं ये तो खलीफा का जो है हुक्म है कि पानी दूध में जो है पानी ना मिलाए। फिर माँ कहती है कि नहीं, क्या खलीफा देख रहे हैं क्या? तो इस पर जो है बेटी कहती है कि अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे हैं, मगर अमीरुल मोमिनीन को देखने के खुदा देख रहा है, यानी कि पानी नहीं मिलाती। यहाँ पे कैसा है देखिए, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पे मतलब आप जो है जो खिलाफत के टाइम पे जो है आपके टाइम पे जो है आपने कहा था कि दूध में पानी नहीं मिलाना। तो वहाँ बेटी क्या बता रही है माँ को, माँ कह रही है कि बेटी पानी मिला दो दूध में, पर बेटी क्या कह रही है, नहीं 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 मिलाऊंगी, क्योंकि खलीफा का हुक्म है। फिर इस पर आप फरमाती है कि बेटी माँ कहती है कि नहीं, अगर क्या खलीफा देख रहे हैं? तो इस पर बेटी क्या कह रही है, नहीं, खलीफा का तो खुदा तो दिख रहा है। यानी कि ये डरने वाले, ये परहेज करने वाले कब बनेंगे हम ये डरने वाले, ये परहेज करने वाले कब बनेंगे? जब हम अल्लाह ताला जब हम इस्लाम पे टिकेंगे, हम ईमान पे टिकेंगे, जब एहसान पे टिकेंगे, तो हम तक़वे वाले यानी कि डरने वाले, परहेज करने वाले बनेंगे। अब देखिए वो शख्स यानी कि वो जो लड़की थी, वो जिसने ये कहा, आप जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जो है बाहर ठहर कर जो है ये बातें सुन रहे थे, आपने क्या किया, आपने फ़ौरन जो है घर आए, जब सुबह हुई तो आप उठकर जो है जो आपके एक साथी थे उनको कहा कि जाइए, जाकर जो है घर के बारे में तहकीक करिए और कैसो देखिए कि वो बच्ची जो शादीशुदा है या नहीं है। फिर आपने जब वो जो साथी थे उन्होंने कहा ठीक है बोलकर आप जो है गए, जाकर जो है तहकीकात कर जो है आपने आकर कहा कि नहीं, शादीशुदा नहीं है। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जो है अपने पूरे बेटों को बुलाकर कहा कि ऐसी एक लड़की है, क्या तुम में से कोई इससे शादी करोगे? तो उसमें से एक बेटा जो है कहता है कि नहीं, मैं शादी करूँगा। तो देखिए मतलब यहाँ पे बात बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे ये वाक़या बताने का मकसद क्या है, और वो डरने परहेज़ करने वाली देखिए कैसा
जितना कैसे वो डरने परहेज करने वाली शख्स की जो बेटी, यानी कि जो वो बेटी थी, वो बेटी की शादी यानी कि किसकी बहू बने ना, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहू बने। और किस किस बुनियाद पे बने? जो अल्लाह ताला का इल्म जिस उनके दिल में था, और जिस इल्म जो था, जिससे जो इल्म था उससे परहेज करने वाले बने आप, डरने वाले यानी कि मुत्तकी। यानी कि आप ऐसे रहने से आपको कैसी कैसी बुलंद तरीक़ी मिल रही है। हम देखें हम क्या करते हैं, हम जो है हम खाली कलिमा पढ़ लिए 5 सेकंड, हम जो है कलिमा पढ़ लिए, पढ़कर समझ रहे हैं हमने इसका हक अदा कर लिया और बाकी के अमल में लग गए। मगर अल्लाह के रसूल के पास जो अमल कबूल होने वाला है, जो ईमान के साथ ही कबूल होने वाला है। तो हमें चाहिए कि ईमान सीखना ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तस्दीक होना ज़रूरी है। जितना इल्म आएगा, जितना यकीन पैदा होगा, तो बंदा यकीन वाला जब बंदा बनेगा तो ऐनुल यकीन पे यानी कि देखने वाला बनेगा। जब बंदा देखने वाले बनेगा तो बंदा जो है हक तक पहुंच जाएगा, यानी कि मुत्तकी बन जाएगा, यानी कि रोजे का मकसद को भी पूरा कर लेगा। तो रोजे का मकसद को भी हासिल करने के लिए हमें ईमान सीखना जरूरी है, और वो सीखने के लिए हमें कलीमा सीखना जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तस्दीक होना जरूरी है। तो मैं अल्लाह ताला से आखिरी में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें जो है, जो रोजे का मकसद है, जो रमजान की तैयारी जैसा करने का हक है वैसा रोजा रहने के और रमजान की तैयारी करने की तौफीक अता करे, और हमें जो है मुत्तकी बनाए, और हमें जो है जो वो हमें जो मकसद के लिए पैदा करा वो मकसद पूरा करने की तौफीक अता करे, और दिल में कलीमे की तस्दीक करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कहने से, जो बोले से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।